to more with tracking from Jammu and Kashmir. After the Election Commission announced dates for Jammu and Kashmir, former Chief Minister Omar Abdullah said the National Conference is preparing for elections. We will announce our candidates after the 20th of August. Remember, this comes at a time that NC leader Farooq Abdullah has already said that he will lead the party in Jammu and Kashmir Assembly elections. Remember, the elections are scheduled to take place in 3 phases from the 18th of September. But this is a first reaction coming in from Omar Abdullah. Listen in. नेशनल कॉन्फ्रेंस की खुशकिस्मती है कि जावेद मिर्चाल साहब जैसे लीडर जो आवाम के साथ जुड़े हुए हैं, जिनका अपने वोटरों के साथ, लोगों के साथ एक करीबी रिश्ता बना हुआ है, आज वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत कर रहे हैं। ये इस तरफ भी इशारा करती है कि लोगों का रुख किस तरफ है। बड़ी बात यह है कि जावेद साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए ज़रूर, लेकिन कोई शर्त नहीं रखी उन्होंने। Let's go across to Ishan Bani to tell us a little bit about the mood in the National Conference camp with Farooq Abdullah, already making it very clear, Ishan, that he's going to be leading the party this election season. What's really going on? What do we make of this comment that's coming from Omar Abdullah? National Conference is riding high on confidence. They believe that the results that have shown for them in the recently held Lok Sabha elections and the constituency-wise breakdown, if you look at, and the trend remains the same, they feel that they are going to win a majority of seats, and that's why you see a lot of people are switching sides from one political party to another. And this Javed being one of the leaders from a far-flung area of Kupwara, now he has jumped the ship and then joined the National Conference. He can be a probable candidate for the National Conference in that area. And, this is the time when political parties try to lure, and also certain people try to, change to the political parties where they feel confident about winning their seat. And, National Conference has been clear that they are going to take up the issue of statehood in the elections. And as you heard Omar saying that, there are positive indications for the National Conference. But yes, they are not sure if they are going to do any pre-poll alliance or post-poll alliance, in Jammu and Kashmir. And last time the National Conference fought elections, Lok Sabha elections, that were part of the India Alliance. But there seems to be no clarity about it. But given the fact that the BJP has been targeting the National Conference, saying that they are overconfident about their victory, while the Omar Abdullah has now hit back at the BJP, saying that what about BJP's slogan of 400 par, well, they haven't been able to get a considerable seats in the recent Lok Sabha election. So these charges and counter charges will be there. But the fact is that right now, since the announcement of elections, a lot is happening politically, where former MLAs, MLCs, or of those senior politicians who have been part of certain political parties and later on switch their sides, they are trying to return back to their parties where they started their political career from. It will be interesting to see in coming days whether there will be any big name which will be switching. We already saw Chaudhry Zulfikar already joining BJP, who was part of the PDP as an MLA. Twice he was MLA from the Jammu region, and then other political parties also expecting some joinings to take place. So it will be a bitter contest between several political parties, and one has to see that how many others now try to jump ship and join the political parties like National Congress, PDP, or Congress, or BJP. Okay, all right. So Javed Mitchell is one name that has been spoken of. He's all set to join the National Conference. JNK in election mode as is, and the National Conference also making it amply clear that they are down to preparing the list for the upcoming elections. Many thanks, Ishan, for getting us all those details. Let's play out some more reactions coming in. लगातार भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर में शानदार विस्तार हो रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की लहर है। जो मोदी साहब ने पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में शानदार काम किए हैं। मोदी साहब जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे के दिल में बसते हैं, और मोदी साहब के लिए जम्मू कश्मीर की जनता के दिल में अपार श्रद्धा और रिस्पेक्ट है।
बहुत ही अहम आज मीटिंग हो रही है, इलेक्शन कमेटी की पहली मीटिंग है। जिक्शन रेड्डी इसको चेयर करेंगे। आपको क्या लगता है कि जिस तरह का मैनिफेस्टो कमेटी ने जब सजेशंस मांगी, सजेशंस भी काफ़ी आई हैं, कहाँ देखती है बीजेपी अपने आप को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो ये इलेक्शन लड़ रही है, हम सरकार बनाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, जीतने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, हर स्टेट में इसी प्रकार से लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। तो जो हमने लगातार लोगों के बीच में रह कर के काम किए हैं, केंद्रीय जो स्कीम्स हैं उसको यहाँ पर लागू किया है, आम व्यक्ति का जीवन सुधारा है। जम्मू कश्मीर में अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार की कमर तोड़ी है, पत्थरबाजी की कमर तोड़ी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हुआ है, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, इन सभी विषयों को लेकर के हम इलेक्शन में उतरेंगे और लोग हमारा समर्थन करेंगे, हमें ऐसा पूर्ण विश्वास है। तो क्या बीजेपी जम्मू कश्मीर में जो टोटल 90 सीटें हैं, 90 कैंडिडेट ही मैदान में लाएगी या कुछ कहीं अलायंस भी हो सकता है? देखिए, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जो बैठक में तय होगा उसके बाद ही इस प्रकार की निर्णय लिया जाएगा। आज अहम इलेक्शन कमेटी की पहली मीटिंग होने वाली है। उसके साथ साथ जुल्फिकार जो है अपनी पार्टी के, वो भी आपको ज्वाइन करने वाले हैं। बीजेपी को कितना फ़ायदा होने वाला है और मीटिंग कितनी क्रूशियल है आज की? देखिए, मैं बताऊं, जब जहां तक चौधरी जुल्फिकार अली साहब का तल्लक है, वो काफ़ी देर एमएलए भी रहे हैं, मंत्री महोदय भी रहे हैं, तो उनके आने से तो पार्टी तो मजबूत होगी। एक तो अपनी सीट जो है उसमें दिल भी नो प्रॉब्लम। अब रामले कम्युनिटी के मशहूर नेता हैं, तो इम्पैक्ट तो उनका रहेगा बरादरी में भी, अदरवाइज़ भी। जब कोई एमएलए बनता है वो सबका बनता है, मंत्री बनता है वो सबका होता है, तो इम्पैक्ट जो है वो तो ओवरऑल उसका है अपने एरिया में, और दायां बायां भी जो है उसका ज़रूर असर पड़ेगा। इस दफ़ा क्योंकि आप उस खित्ते से आते हैं और इस दफ़ा जिस तरह से पुंछ के कुछ इलाके और जो अनंतनाग सीट के साथ थे लोकसभा में, उससे आपको लगता है लोगों में गुस्सा है या आपको लगता है कि लोग खुश हैं और जो आपका जो परफॉर्मेंस है अच्छा हो सकता है? नहीं, एक मैं बताऊँ आपको, इट्स वेरी मच क्लियर कि अगर एमपी को वहाँ से वोट मिले हैं पूरे हमारे पीर पंचाल से, रजौरी पुंछ के एरिए से, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि असम्बली में भी उनको मिलेंगे, नॉट एट ऑल। जैसे आपके सामने दिल्ली की मिसाल है, दिल्ली में सब जो एमपीज़ हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, एमएलए जो हैं वो अपनी पार्टी के हैं, ठीक है ना। तो ऐसी बात नहीं है, लोग समझते हैं और वो ये भी समझते हैं कि हमारा काम करने वाला कौन नेता है, क्या है। आज बहुत ही अहम मीटिंग होने वाली है, इलेक्शन कमेटी की पहली मीटिंग है और बहुत सारी उम्मीदें बीजेपी को भी हैं कि इस इलेक्शन विधानसभा में वापस जो है उनको अच्छा जो एक रिस्पॉन्स है लोगों का वो मिलने को आएगा। कितने आश्वस्त आप इस बात को लेकर? लोगों को उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी पे कि भारतीय जनता पार्टी लोगों में से है और अवाम में से है और होपफुली लोग हमें मौका देंगे। आज की मीटिंग कितनी अहम है? ये पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो यूनियन नेशनल लेवल पे होता है। यहाँ भी एक जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कमेटी बनी है, मैं भी उसका सदस्य हूँ। तो सर, क्या यहाँ पे जो नए चेहरे हैं इस दफ़ा, क्योंकि लोगों की ये भी उम्मीदें भी हैं कि नए चेहरे सामने आएंगे बीजेपी के, क्या कुछ इस बात पर चर्चा है? हमारा मंडल, ब्लॉक और एक मैकेनिज्म है वो तय करता है। तो इसके साथ कोई अब जो जम्मू कश्मीर में बीजेपी का सीएम होगा, इस बात की भी चर्चाएं जो हुई और टारगेट सेट किया गया था आपकी तरफ से 50+ का, क्या बीजेपी उस पर कायम? उम्मीद है कि लोग हमें सेवा का मौका देंगे। Let's now shift our attention to the state